Hello all. I welcome you all to the second lecture or second video lecture of the series from AK-CS right? Today, as we had earlier discussed that we had started off with the subject data structure, today we will be taking up another sorting technique, and that is insertion sort, right? Today we will be directly discussing about the insertion sort, the algorithm that is associated with this sorting technology, and along with that, in the last we will see to the execution part of the algorithm, which is most important from all examination points of view, right? So आज के लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट एल्गोरिथम से शुरुआत करने जा रहे हैं. द एल्गोरिथम फॉर टुडेज लेक्चर इज इंसर्शन सॉर्ट, राइट? This is our insertion sort, right? As the name suggests itself, that in this sorting technique, we have to insert something into a given set of data, right? We will be considering that we have been provided with some given set of data and we have to insert something, right? Taking out from one array, and we have to insert that whatsoever we have taken out from array into something, right? In order to sort the data items. अब हम लोग डायरेक्टली एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन से शुरुआत करते हैं, राइट? दिस इज इंसर्शन सॉर्ट, दिस इज द एल्गोरिथम दैट इज एसोसिएटेड विद दिस इंसर्शन सॉर्ट, है ना? एज वी कैन सी ओवर हियर दैट वी हैव टू फेस टू डिफरेंट लूप्स, वन इज द फॉर लूप एंड अनदर इज व्हाइल लूप. ठीक है, वी विल बी टेकिंग अप एन एग्जांपल एंड देन आफ्टर we will be considering each and every step of algorithm, and in accordance with the steps of the algorithm we will be executing that example, right? Let's consider an example. Let's say that this is an array which has to be sorted, right? This is an array which has to be sorted, and this array consists of the following elements: 3, 7, 4 and 2, right? And we have to perform insertion sort on this array. Sorting we have already discussed as either we have to arrange some given set of data items in increasing order or in decreasing order. But अगर specifically ये mention नहीं है कि increasing में करना है तो या decreasing में करना है, in that case by default it is considered to be in increasing order, है ना? तो हम ये मान के चलेंगे कि इस इंसर्शन सॉर्ट में ये जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया है, इसमें जो डेटा आइटम्स हमारे पास हैं, वी हैव टू अरेंज, वी हैव टू रीअरेंज दोज डेटा आइटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. क्लियर? अब इस एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा. शुरुआत होती है फॉर लूप से. इनिशियल वेरिएबल है j इक्वल टू 1. इसका मतलब j एक वेरिएबल है और j में एक वैल्यू असाइन की गई है, j की वैल्यू है 1. एग्जीक्यूशन को ध्यान से देखिएगा. j इक्वल टू 1, the value that is assigned to the variable j is 1. j is less than n, मतलब ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा till the time the value of j reaches to n. n से एक कम होना चाहिए. this is less than n, not less than or equal to n. इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा n minus 1 तक. ठीक है, चलिए. और n होता क्या है? n is basically the total number of elements in the array to be sorted. यहाँ पे total number of elements यानी n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे n की वैल्यू है 1, 2, 3, 4. The index of this array will be considered as 0, 1, 2, 3. This is the indexing sequence. j को शुरुआत होना है 1 से, जाना है कहाँ तक? n से एक पहले तक और j प्लस प्लस, यानी ये शुरुआत होगा 1 से, इसको समझिएगा, और जाएगा कहाँ तक? लेस देन n. लेस देन n का मतलब n माइनस 1. n माइनस 1 यानी n अगर 4 है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 3. ये 1 से शुरू होगा और थर्ड इंडेक्स तक जाएगा. ठीक है, यहां तक क्लियर है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. j इक्वल टू 1. राइट नाउ n की वैल्यू अभी कितनी है? n की वैल्यू फॉर करंट सिचुएशन इज 4. j 1 है और 1 लेस देन 4 है, तो कंडीशन ट्रू. इफ द कंडीशन इज ट्रू द कंट्रोल इंटर्स द लूप. हम लोग इसको बेटर जानते हैं, राइट? जैसे ही लूप के हम अंदर आ रहे हैं, i की वैल्यू इनिशियलाइज हो जा रही है किससे? j माइनस 1 से. तो i की वैल्यू किससे इनिशियलाइज होगी? i की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है j माइनस 1 से, और j की करंट वैल्यू क्या है? 1. तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? j माइनस 1 यानी 1 माइनस 1. अल्टीमेटली दिस कैन बी रिटन एज 0. ठीक है, यह स्टेप एग्जीक्यूट हो गया.
नाउ व्हाट इट इज सेइंग, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस कोडिंग लैंग्वेज में इफ इट इज सिंगल इक्वल टू दैट सर्टेनली मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ RHS हैज टू बी कॉपीड इनटू LHS। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, की इक्वल टू ARR ऑफ J, मतलब ये हमारे पास में की हो गया, कंसिडर दिस एज की इज ए वेरिएबल, राइट। एंड व्हाट इट इज सेइंग, ARR J में जो है उसको उठा के की में कॉपी कर दीजिए। अब ARR J में क्या है, ARR J का मतलब हो गया J की वैल्यू अभी 1 है, तो ARR 1, ARR में 1, ARR 1 पे है क्या 7, तो इसका मतलब क्या है, की में क्या आ गया 7। एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन बहुत ध्यान से देखना, यहां तक का स्टेप क्लियर। देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फर्दर। While I is greater than equal to 0, ये अगेन लूप शुरू हो गया, हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, राइट। डबल एंड का साइन है, इसका मतलब है एंड, राइट। अब हमें अगेन कंडीशन चेक करनी पड़ेगी while, मतलब जब तक I is greater than equal to 0, I की वैल्यू कितनी है 0, क्या 0 greater than equal to 0 है, हाँ बिल्कुल है, greater than 0 नहीं है लेकिन equal to 0, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। एंड ARR I is greater than की, यानी ARR I का मतलब ARR 0 दैट शुड बी ग्रेटर देन की। अब ARR 0 पे क्या है 3, की में हमारे पास क्या है 7, यह क्या हो गया, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब बेटा कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा, कंट्रोल सीधा लूप के बाहर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती, इफ दिस कंडीशन वुड हैव बीन ट्रू देन द कंट्रोल वुड हैव एंटर्ड इनटू द लूप, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब, एक भी कंडीशन फॉल्स होने का मतलब आप लूप से बाहर आ जाइए, और लूप से बाहर आके क्या कह रहा है, की वैल्यू ARR I+1 में इंसर्ट कीजिए। की वैल्यू ARR I+1 में आपको इंसर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, ARR I+1 क्या होगा, ARR I की वैल्यू अभी भी कितनी है 0, +1 में हमको क्या इंसर्ट करना है, की में है क्या 7, और ARR 0 + 1 क्या हो जाएगा, ARR 1, ARR 1, और ARR 1 में ऑलरेडी क्या, अब ये कह रहा है कि 7 को इंसर्ट कीजिए ARR 1 में, राइट। तो 7 जाके ARR 1 में हमको क्लियर दिख रहा है कि ARR 1 में 7 है, तो 7 जाके फिर से यहीं पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये पहला एग्जीक्यूशन हो गया, मतलब J = 1 के लिए हमने एग्जीक्यूट कर लिया। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। J = 1 के लिए हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं, ठीक है। और हमारे पास पहला जो हमने पूरा का पूरा एक कवर अप लिया है एग्जीक्यूशन का, उसमें जो हमारी एरे आई है उसके किसी भी एलिमेंट के किसी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, राइट। तो अल्टीमेटली वी कैन से द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पास ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एल्गोरिथम इज सेम एरे। एरे हमारे पास आइडेंटिकल रह गई, एरे हमारे पास रह गई 3 7 4 2। आई की वैल्यू हमारे पास में अल्टीमेटली क्या हो चुकी थी, आई की वैल्यू सेम थी, आई की वैल्यू हमारे पास 0 थी। खैर दैट डजंट मैटर, क्योंकि जब हम लूप का दोबारा एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे तो आई की वैल्यू कहीं काउंट ही नहीं होगी। अब देखिए ये फॉर का लूप था, फॉर के लूप का एग्जीक्यूशन एक बार में एक पास खत्म हो चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग फिर यहाँ से जाएंगे, J की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे। J की वैल्यू क्या थी पहले 1, कंडीशन ट्रू हुआ था तो हम अंदर एग्जीक्यूट किए थे, राइट। नाउ अब क्या हो जाएगा, नाउ द वैल्यू ऑफ J की वैल्यू में इंक्रीमेंट लगा, J की वैल्यू अब हो गई 2, यानी J की वैल्यू अब हमारे पास हो जा रही है 2, राइट। N की वैल्यू तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट 4 है, N की वैल्यू तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, N की वैल्यू 4 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है N, राइट। तो क्या 2 4 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है। इफ द कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू, होता क्या है, कंट्रोल जो है लूप के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब लूप के अंदर आ गए, हम लोगों ने फिर से एग्जीक्यूशन शुरू किया। आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई J-1, J की करंट वैल्यू क्या है 2, तो आई की वैल्यू हो गई 2 - 1 यानी 1। तो इसका मतलब J 2 से इनिशियलाइज हुआ था, आई किससे इनिशियलाइज हो गया 1 से इनिशियलाइज हो गया। फिर फर्दर हम अगले स्टेप में आए, कह रहा है ARR J की वैल्यू की में डाल दीजिए। इसका मतलब की में अब क्या आ गया, की में क्या आएगा ARR J, ARR
जे क्या है 2 है, इसका मतलब ARR 2 की वैल्यू को किस में कॉपी कर देना है हमको, की में कॉपी करना है, और ARR 2 में क्या है 4, तो इसका मतलब ये जो 4 है अब की में आ गया, की वैल्यू अब क्या हो गई 4। आगे चलिए, while i is greater than 0, कंडीशन चेक करते हैं, क्या i greater than 0 है, i की करंट वैल्यू क्या है 1 is greater than 0, यस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो हम अगला कंडीशन चेक करेंगे, ARR i शुड बी ग्रेटर देन की, ARR i शुड बी ग्रेटर देन की, यानी ARR i की जगह पे क्या आएगा 1, शुड बी ग्रेटर देन की क्या है 4। अब ARR 1 क्या है 7 है, यहाँ पे देखिए 0 1 2 3, अब ARR 1 क्या है 7 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 4, क्या कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो इस वाले केस में क्या हो गया, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। इफ बोथ द कंडीशंस आर फाउंड टू बी करेक्ट एंड ट्रू, इसका मतलब क्या है, द कंट्रोल विल एंटर इनटू द लूप। अब कंट्रोल जो है लूप के अंदर आ जाएगा, जब कंट्रोल लूप के अंदर आ जाएगा तो क्या कह रहा है, ARR i की वैल्यू उठा के ARR i + 1 में कॉपी कर दीजिए। सिंगल इक्वल टू इट सिंपली मीन्स दैट वी हैव टू कॉपी द वैल्यू ऑफ ARR i इनटू ARR i + 1। ठीक, अब ARR i में क्या है, ARR i की वैल्यू कितनी थी 1, ये हो गया ARR 1। ठीक है, अब ARR 1 क्या था हमारे पास में, ARR 1 देखिए 7 है, और ये क्या कह रहा है, ARR i की वैल्यू को उठा के ARR i + 1 में कॉपी कर दीजिए, यानी ARR 1 की वैल्यू को किस में कॉपी कर दीजिए, ARR 2 में कॉपी कर दीजिए। ठीक, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, एरे का रिजल्ट क्या होगा 3, देखिए 7 को उठा के कह रहा है, मतलब 1 की वैल्यू को 2 में कॉपी कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ की वैल्यू क्या होगी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया है। ठीक है, 3, ये तो वैकेंट हो गया, राइट। नाउ वी हैव इंसर्टेड दिस वैल्यू इनटू दिस सेगमेंट, राइट, तो यहां पे 7 आ गया। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट आपका बच गया है 2। यहां तक की बात सबको क्लियर है। इसके बाद क्या कह रहा है, i माइनस माइनस, यानी i की वैल्यू में 1 से डिक्रीमेंट कीजिए। जब i की वैल्यू में 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। देन आफ्टर फिर कंडीशन चेक कीजिए, क्या i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब चेक कीजिए क्या ARR i इज ग्रेटर देन की, अब ARR i क्या हो गया, ARR i, यानी ARR i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 0, यानी ARR 0 की वैल्यू क्या है, जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस एरे, 0 1 2 3, ARR 0 की वैल्यू है 3, ARR 0 की वैल्यू है 3। तो क्या कह रहा है, क्या 3 की से बड़ा है, की हमारा क्या है 4 है, इज 3 ग्रेटर देन 4, नहीं, ये कंडीशन यहाँ वायलेट हो गई। कंडीशन वायलेट हो गई तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, कंट्रोल लूप से बाहर आ गया तो क्या कह रहा है, ये की के वैल्यू को ARR i + 1 में डाल दीजिए, यानी की वैल्यू अब कहाँ चली जाएगी, ध्यान दीजिएगा, अब की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ARR i + 1 में, यानी ARR i की वैल्यू कितनी है 0 + 1, यानी की वैल्यू चली जाएगी ARR 1 में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ARR 1 केवल खाली था, तो ARR 1 में क्या आ गया की, और की हमारे पास में क्या है 4 है, 3 4 7 2। आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि हर स्टेप में हम कुछ इंसर्शन कर रहे हैं, एंड आफ्टर ईच पास वी कैन विजुअलाइज दिस थिंग, वी कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग, द एरे इज गेटिंग सॉर्टेड पास बाय पास, राइट। तो इस एग्जीक्यूशन का अब j = 2 के लिए भी एग्जीक्यूट कर चुका, j की वैल्यू 2 थी, j = 2 के लिए एग्जीक्यूट कर चुका, और j = 2 के एग्जीक्यूशन के बाद में हमारे पास में जो फाइनल एरे आई है वो कौन सी एरे आई है, 3 4 7 2। नाउ इट बिकम्स 3 4 7 2। नाउ इट बिकम्स 3 4 7 2। 3 4 7 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। इंडेक्स क्या हो गया बेटा, इंडेक्स हो गया 0 1 2 3। अब इन सारे वेरिएबल्स को हमको फिर से इनिशियलाइज करना होगा। j की वैल्यू पिछले पास में क्या थी, 2 थी। ये लूप पूरा एक बार कैलकुलेट, पूरा एग्जीक्यूट हो गया यहाँ से यहाँ तक।
पूरा एक एग्जीक्यूशन हो गया। फिर कंट्रोल कहाँ रिटर्न करेगा, यहाँ रिटर्न करेगा J प्लस प्लस, यानी J की वैल्यू 2 से बढ़ के अब हो जाएगी 3। ठीक है, J की वैल्यू 3 हो गई। N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू 4 है। क्या 3 4 से छोटा है? हाँ है। द कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू अगेन, एंड इन केस द कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू, द कंट्रोल विल एंटर द लूप। I do hope that you all are getting it properly, right? 3 is less than 4, condition is verified, condition is correct. In that case we have to enter the loop. हम लोग लूप में फिर से एंटर करते हैं। चलिए देखते हैं। I इक्वल टू क्या कह रहा है, J माइनस 1। J की वैल्यू कितनी है, 3, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1 दैट इज 2। द वैल्यू ऑफ I becomes 2, राइट। नाउ आगे क्या कह रहा है, ARR J की वैल्यू को की में कॉपी कर दीजिए। ARR J इसका मतलब ARR 3, दिस वैल्यू हैज टू बी कॉपीड इनटू की। और ARR 3 पे क्या है, ARR 3 पे है हमारे पास में 2, यानी की क्या हो गया हमारे पास में 2 हो गया, राइट। नाउ व्हाइल I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या I है, I हमारे पास क्या है 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू है भाई, 2 तो 0 से बड़ा ही है। एंड अब ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, एंड ARR I इज ग्रेटर देन की, यानी ARR I क्या है, ARR 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन की। तो ARR 2 क्या है बेटा, ARR 2 है 7, दैट शुड बी ग्रेटर देन की। क्या कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल, 7 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है। इफ द कंडीशंस आर फाउंड टू बी ट्रू, द कंट्रोल विल इंटर इनसाइड द लूप। ठीक है, अब यहां पे क्या करेगा, क्या कह रहा है, ARR I की वैल्यू को उठा के ARR I प्लस 1 में कर दीजिए। अब एरे को देखिएगा ध्यान से, ये 0 1 2 3, what it is actually saying कि ARR I की जो वैल्यू है that has to be copied into ARR of I plus 1। ARR I क्या है, 2 है, यानी ARR 2 की वैल्यू को उठा के हमको किस में कॉपी करना है, ARR 3 में। अब ARR 2 पे क्या था, 7 था, ये कॉपी कहाँ हो जाएगा, ARR 3 में। 7 यहाँ चला गया, I माइनस माइनस, I की वैल्यू कितनी थी 2, I माइनस माइनस कर देंगे, I की वैल्यू में 1 से डिक्रीमेंट, I की वैल्यू कितनी हो गई 1, द वैल्यू ऑफ I बिकम्स 1। ठीक है, हम फिर से कंडीशन क्या चेक करेंगे, क्या I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि I की वैल्यू तो 1 है, वो 1 0 से बड़ा है, राइट। ARR I शुड बी ग्रेटर देन की। अब ARR I का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ARR 1 शुड बी ग्रेटर देन की, हमें ये चेक करना है। तो ARR 1 में हमारे पास क्या था, 4 था, तो क्या 4 जो है की हमारे पास क्या है 2, 4 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, द कंडीशन इज अगेन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो हम अंदर आएंगे। अब अंदर आएंगे तो हम क्या करेंगे, ARR I की वैल्यू को ARR I प्लस 1 में कॉपी कर देंगे। I की करंट वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब ARR 1 की जो वैल्यू है यानी 4, इसको हम कहाँ पर कॉपी कर देंगे, ARR I प्लस 1 में, यानी ARR 2 में, यानी 4 जो है चला जाएगा ARR 2 में। ठीक है, यहाँ तक की बात आई डू होप आप सबको क्लियर होगी। स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखिएगा एग्जीक्यूशन के, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जाइए, ये स्टेप होने के बाद वी विल मूव टू दिस स्टेप। ये क्या कह रहा है, आई की वैल्यू में फिर से एक का डिक्रीमेंट, यानी आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ आई नाउ बिकम्स 0। आई की वैल्यू अब क्या हो गई 0 हो गई। जब आई की वैल्यू 0 हो गई, ऊपर हम गए, वी हैव टू चेक द कंडीशन, क्या आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, बट 0 इज एटलीस्ट इक्वल टू 0, तो दिस कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद ARR I शुड बी ग्रेटर देन की। ARR I का क्या मतलब हो गया, ARR I शुड बी ग्रेटर देन की। I की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, तो ये क्या कह रहा है, ARR 0 शुड बी ग्रेटर देन की। ARR 0 में क्या है, देखिए ARR 0 में 3 है, दैट शुड बी ग्रेटर देन की क्या है हमारे पास में 2 है, कंडीशन ट्रू हुई, बिल्कुल कंडीशन ट्रू हुई, तो ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू। फिर क्या होगा, फिर हम अंदर आएंगे,
फिर क्या होगा, ARRI की वैल्यू कॉपी हो जाएगी ARRI प्लस 1 में, और ARRI क्या थी, ARR 0 थी। इसका मतलब क्या कह रहा है, ARR 0 की वैल्यू को कॉपी कर दो ARR 1 में, तो ARR 0 क्या था, 3 था, ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी किसमें, 1 में, यानी यहां पे आ जाएगा 3, राइट। फिर हम क्या करेंगे, I माइनस I की वैल्यू में फिर से एक का डिक्रीमेंट, सो फाइनली द वैल्यू ऑफ I बिकम्स -1। फिर आइए फिर से कंडीशन चेक कीजिए, वाइल I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या -1 0 से बड़ा या बराबर है, नहीं, द कंडीशन इज वायलेटेड ओवर हियर, यहां पे कंडीशन वायलेट कर जा रही है, क्योंकि -1 0 से ना बराबर है ना इससे बड़ा है, राइट। एंड इन केस द कंडीशन इज वायलेटेड, क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर आ जाएगा, की वैल्यू दैट विल गेट कॉपीड इनटू ARR ऑफ I प्लस 1। अब क्या कह रहा है, लूप से बाहर आने के बाद ये आखिरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक की वैल्यू को कॉपी कर दीजिए ARR I प्लस 1 में। अब ARR I प्लस 1 में क्या हो जाएगा, ARR I प्लस 1 की ये बात कर रहा है, तो ARR यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, -1 + 1, ARR 0, व्हाट इट इज सेइंग, की वैल्यू को ARR 0 में प्लेस कर दीजिए। देखिए आप, केवल ARR 0 ही बाकी था और तो कोई बाकी नहीं था, राइट। तो अब क्या कह रहा है, की वैल्यू को ARR 0 में कर दीजिए, यानी की वैल्यू हो गई 2 और ये यहां पे आ गई। आर यू गेटिंग इट प्रॉपरली और नॉट, ठीक। अब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये लूप यहां से लेके यहां तक फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया। हम फिर कहां जाएंगे, यहां पे जे पे, जे की वैल्यू को फिर 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, जे की वैल्यू 3 से हो जाएगी 4। कंडीशन चेक करेंगे कि 4 शुड बी लेस देन 4, क्या 4 से छोटा है, नहीं, 4 लेस देन इक्वल टू 4 होता तो वो चलता, लेकिन दिस इज 4 शुड बी लेस देन 4 ना, दिस इज नॉट वैलिड। कंडीशन यहाँ पे वॉलेट कर जा रही है, यहाँ भी 4 वहाँ भी 4। जैसे ही कंडीशन वॉलेट की, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, कंट्रोल विल कम आउटसाइड द लूप एंड द एल्गोरिथम गेट्स टर्मिनेटेड। एल्गोरिथम के टर्मिनेशन के साथ साथ आप यहाँ देखिए रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, योर एरे हैज बीन सॉर्टेड। आप लेके क्या चले थे, 3 7 4 2 1, आपके पास आया क्या है, 2 3 4 7, right? This array is sorted in increasing order. So I do hope you are getting the steps, the execution procedure, right? All about insertion sort. देखिए, one thing I would like to ponder over here is that आप लोग काफ़ी सारे lectures देखते होंगे, you might have seen so many different videos over the same topic, over where you are taught to sort or to solve the same problems with some another technique without the help of loop. क्या होता है, कुछ शॉर्ट तरीके होते हैं जो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कर देते हैं, राइट। आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब तक आप एल्गोरिथम को डीबग करना नहीं सीखेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू टैकल द क्वेश्चंस ऑफ हायर लेवल दैट आर जनरली आस्क्ड इन नेम सेट और गेट, राइट। आप लोग शॉर्टकट में मत भागिएगा, दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट। शॉर्टकट बताना बहुत आसान होता है, आप लोग एल्गोरिथम के स्टेप्स को डीबग कीजिए एंड इन अकॉर्डेंस विद द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे आपके पास किसी भी हायर लेवल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास एग्जीक्यूशन दिखाने के लिए नहीं आता है। दे सिंपली आस्क यू दैट वेदर द लूप और वेदर द एक सेट ऑफ कोड दे देंगे और कहेंगे कि वेदर द गिवन सेट ऑफ कोड सेटिस्फाई द गिवन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम और नॉट। तो जब तक आप उसके कोड को समझेंगे नहीं, उसके कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर चुके होंगे, तब तक आपको वो चीज़ कैसे समझ में आएगी, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझने के लिए इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत, राइट। तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया, राइट। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, with some sort of MCQs that I have already mentioned that are extremely important from examination point of views, right? How many passes does an insertion sort algorithm consist of? आपने एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन देखा है, ठीक है। हम जे का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता था, हमेशा 1 से शुरू होता था, 0th इंडेक्स को हम लोग छोड़ देते थे। तो हर बार अगर n हमारे पास एलिमेंट है तो कितनी बार ये पूरा पास मूव करता था, n-1 टाइम्स, राइट। सो इफ समवन इज आस्किंग हाउ मेनी पासेस डज एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ, देन इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ n-1 पासेस। इसको समझने के और भी तरीके हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, एक्चुअली द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट इटसेल्फ, that it should have been given that the array is consisting of n number of element. अगर n number of element में कोई array है तो how many passes does it require, n-1। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक है भी नहीं, ठीक है। Now we will move on to the next example. Next example is what is the average case running time of insertion sort algorithm। ये देखिए जो
कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है, दिस इज आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा दैट इज रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक. व्हाट इज द एवरेज केस रनिंग टाइम ऑफ एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम. ठीक है, देखिए जब हम पहले एलिमेंट को लेते हैं, जे शुरू होता है 1 से लेके फिर हम इधर इंसर्ट करते जाते हैं, राइट. एक पार्ट होता है हमारा सॉर्टेड एरे का, एक पार्ट होता है अनसॉर्टेड एरे का. पहले एलिमेंट के लिए हम लोग कितना कंपैरिजन करना है, n-1. आफ्टर 1 पास द एरे इज सॉर्टेड फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट. द नेक्स्ट how many number of comparisons are required? Since one element has already been sorted, then the number of comparisons required is n-2. In similar way, next n-3, and similarly it will proceed down to 3 plus 2 plus 1, right. Now this is ultimately, this is what? This is sum of n natural numbers, but the difference is that here n is replaced by n-1. सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस इज द फॉर्मूला डेट वी यूज टू स्टडी इन क्लास 8, 9 और 10th स्टैंडर्ड, राइट, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 n-1, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है n-1/2 2a. a इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज. यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 1 प्लस n-1. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास में, n-1 है, तो n को रिप्लेस क्या कर देगा, इस n को क्या रिप्लेस कर देगा, n-1 इंटू डी. डी इज बेसिकली द कॉमन डिफरेंस. हर दूसरे टर्म के बीच भी क्या कितना डिफरेंस है, 1 से 2 का डिफरेंस 1 है. द डिफरेंस बिटवीन 3 and 2 इज अगेन 1. दिस एंड दिस इज 1, दिस एंड दिस इज 1. सो कॉमन डिफरेंस बिकम्स 1. दिस बिकम्स n-1/2 2 plus n-2. These two gets cancelled out. This becomes n into n-1/2. It becomes n square minus n/2. And while considering the complexity of any algorithm, if we reduce a particular equation, we know it very well that the coefficient with maximum power is basically considered as the efficiency of the algorithm or complexity of the algorithm. So the average case running time or average case complexity of the algorithm will be big O of n square. If at the same time, if I ask you that what should be the complexity of the algorithm when it is running in the best conditions, ठीक है, जब हम बेस्ट कंडीशन में रन कर रहे होंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, खैर वो हम आगे देखेंगे. ये वर्स्ट केस को, ये एवरेज केस को हमने देखे. वर्स्ट भी यही होगा कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास सॉर्टेड हो, हमें पूरा का पूरा रीसॉर्ट करना पड़े, तो द कॉम्प्लेक्सिटी विल रिमेन सेम. कॉम्प्लेक्सिटी का डिडक्शन आई डू होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ओवर हियर द आंसर बिकम्स big O of n square. This is the answer, right? Let's move to the next question. Now what is the running time of insertion sort algorithm if the input is pre-sorted? अगर input pre-sorted है, then we have to do the comparison. No swapping, no exchanging is to be done. So obviously the algorithm will be having an efficiency of big O of n, right? This is the best case. Next question is, देखिए कुछ क्वेश्चन जो मुझे बहुत ही सिंपल दिख रहे हैं उनको मैं डायरेक्टली भी बता दे रहा हूँ, बट इफ यू डू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सी व्हाट आर द बेसिक लूप्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन इंसर्शन सॉर्ट. बताओ अगर यही क्वेश्चन आपके पास आता है, इफ द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इनटू एन एग्जामिनेशन एंड यू हैव लर्न टू सॉल्व दीज इंसर्शन सॉर्टिंग एंड अदर सॉर्टिंग टेक्नोलॉजीज डायरेक्टली यूजिंग शॉर्टकट्स एंड बाय नॉट एग्जीक्यूटिंग एल्गोरिथम्स, आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे? नहीं. आपके पास मैंने एल्गोरिथम से एग्जीक्यूट करके दिखाया है, राइट, एंड वी हैव सीन टू दिस फैक्ट दैट वहां पे एक लूप था फॉर लूप, ठीक है, और दूसरा लूप था हमारे पास में व्हाइल लूप. तो फॉर और व्हाइल लूप की हमारे पास में जरूरत पड़ी. लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन और बढ़ाता, इफ देयर वुड हैव बीन फिफ्थ कि फॉर एंड फॉर, ठीक है, इसको कंसीडर कीजिए. ये इफ को हटा देता, इसको एक मिनट हटाइए, इसको देखते हैं. इस इफ को हटा देता, फॉर एंड फॉर, मल्टीपल फॉर लूप, ठीक है, और इसका ऑप्शन होता 1 2 3 4, और फिफ्थ में ये बोल देता बोथ
3 and 4, then what should have been the answer? बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा कि जिस चीज़ को हम फॉर और वाइल से कर रहे हैं उस चीज़ को हम फॉर और फॉर से भी कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट होता और ये भी करेक्ट होता, राइट। लेकिन फिलहाल हमारे पास में क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर ऑप्शन इतना कॉम्प्लेक्स होता तो फॉर एंड वाइल से भी चलता, फॉर एंड फॉर से भी चलता। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, राइट, प्रोवाइडेड यू हैव हिट द एल्गोरिथम। अगर आपने एल्गोरिथम हिट कर रखी है तो ये बहुत सिंपल थिंग्स है। तो ये समझ में आ गया, फॉर एंड वाइल से भी चलता, फॉर एंड फॉर से भी चलता। और अगर ये ऑप्शंस होते तो बोथ 3 and 4 वाला आपका करेक्ट होता। लेकिन फिलहाल हमारे पास में ये ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास में इतना ही था, तो वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल और द बेस्ट फीजिबल ऑप्शंस। तो फॉर एंड वाइल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझिए कि फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट करता है। फॉर इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन, देन आफ्टर मॉडिफिकेशन, यही तो 3 चीज़ें होती हैं। उसके बाद लूप एग्जीक्यूट कर जाता है। हम लोग क्या देख रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे, कंडीशन चेक कर रहे थे, कंडीशन ट्रू होता था तो अंदर आ जाते थे, और लास्ट पे फिर मॉडिफाई करके कंडीशन चेक करके अंदर मॉडिफिकेशन किया, कंडीशन चेक किया, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन वी हैव टू गो इनटू द लूप। कंडीशन जहाँ पे फॉल्स हो जाता वहाँ पे हम लूप से बाहर आ जाते। यही तो हम कर रहे थे, दिस इज व्हाट वी हैड बीन डूइंग, है ना। और वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप में जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन दे देगा, राइट, यहाँ पे आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है, और लास्ट में आपके पास मॉडिफिकेशन दे देगा। तो हो तो यहाँ भी हो ही रहा है, कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, मॉडिफिकेशन। सो दिस एल्गोरिथम वाज इक्वली एग्जीक्यूटेबल विथ फॉर लूप एंड वाइल लूप along with फॉर एंड फॉर। तो आई डू होप कि आप सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आई डू होप कि ये सारी चीज़ें आप सबको क्लियर होंगी। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक, राइट। आई हैव डिस्कस्ड विथ यू the algorithm, the steps of the algorithm, the execution of the algorithm, the complexity that is associated with the algorithm of insertion sort, right, and the other MCQs. If you do have any doubt, you can post directly into the comment section of the YouTube channel that you are watching right now. Along with that, you can directly ping me on my contact number, और उसके साथ साथ आप मुझे email भी कर सकते हैं मेरी ID पर, right. So if you do have any doubt, all of you are most welcome to ask, right. So this is all about insertion sort.